Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 121. Now come to the exercise. Question number 1, choose the correct option and write in the space provided. Correct option को choose करें और space provided में write करें. Number 1, dash key is used to undo an action. कौन सी की हम यूज़ करते हैं action को undo करने के लिए? Control plus Z. Number 2, dash feature is used to enter a predefined series of data such as text or number. किस feature को हम use करते हैं predefined series of data को enter करने के लिए? Autofill feature. Number 3, to change the row height, the shape of mouse pointer changes to B. Insert, delete and format commands are present in dash group. कौन से group में है present? ये cells group. Control plus space bar key is used to select entire column. Number 2, fill in the blanks. Blanks को fill करें. Number 1, to activate a cell, press dash function key. Cell को activate करने के लिए आप कौन सी function की press करते हैं? F2. The default row height is dash and column width is dash points. Default row height क्या है? कितने points है? 12.75 points है और column width जो है वो क्या है? 8.43 points. Now move to the page number 122. The dash shows the extent indicator. Extent indicator कहाँ पर show होता है? Status bar में. Number 4, the name manager is present in dash group. Name manager present है किस group में? Define names. Cut, copy, paste commands are present in dash group. Cut, copy and paste command are present in clipboard group. C part, tick the correct and cross the wrong ones. Number 1, you can select multiple ranges simultaneously. आप select कर सकते हैं multiple ranges को simultaneously. True. Number 2, you cannot change column width. Column width को आप change नहीं कर सकते. False. Column width को हम change कर सकते हैं. Series of even numbers can be generated using autofill feature of MS Excel. Even number की series हम generate कर सकते हैं autofill feature के through. True. The undo button on quick access toolbar allow you to undo your last 16 action. True. You can name a range by typing its name in formula box. आप name को range को name दे सकते हैं by typing its name in formula box. False. Okay, next. Identify the following icons. इन icons को identify करें. इनमें क्या है? Name manager, first, second break, third formula, format as table, 4 margins, 5 clear, 6 error checking. Puzzle. A collection of worksheet is called workbook. Smallest unit in worksheet is called cell. Cut, copy, paste command are present in a group, clipboard. Group of adjacent cells is called range. Data in the form of rows and columns, spreadsheet. Data in vertical form, column. Data in horizontal form, row. A mathematical expression used to solve problem, formula. Worksheet is also known as spreadsheet. Okay, now come to the copy work. Chapter number 8, editing in MS Excel 2010. Question number 1, write down the functions of the following useful shortcuts. Shortcuts function. Control plus C is used to copy the text. Control plus V is used to paste the text. Control plus X is used to cut the text. Control plus Z is used to undo an action. Shift plus space bar to select entire row. Control plus space bar. Control plus space bar to select entire column. Control plus A to select entire worksheet. Short questions. Question number 1, define autofill. Autofill is a very useful Excel feature. It is used to fill the cells with a predefined series of numbers and text. Number 2, define range. Range क्या है? Block of neighboring cells or cells which are adjacent to each other. Question number 3, what is fill handle? Fill handle क्या है? Fill handle, it is a small black square in the lower right corner of selected cells. Okay, next, now come to the long questions. Long question.
open page number 99. Long question number 1. How will you select multiple range of cells? Multiple range of cells को कैसे select कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यहाँ से. To select the multiple range of cells, follow the given step. First point, second, third. Control key. Next, question number 2. Question number 2. How will you select an out of view range? हम out of view range को कैसे select कर सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ से है. To select a range that is out of view, follow the given steps. First point, second, third point, fourth point. To turn off the extend function, press F8 again or escape key. Next, page number 102. Question number 3. Write the steps to name a range. Steps को write करें range को name देने के लिए. तो आंसर इसका है to name a range, follow the given step. First point, select the cell or range. Second, third, 4, 5. Click on the OK button. Next question, page number 112. Question number 4. Write the steps to insert a column. Steps लिखें कॉलम को इंसर्ट करने के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से पहले हेडिंग देनी है इंसर्टिंग एन एंटायर कॉलम. फिर यहाँ से टू इंसर्ट एन एंटायर कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद ये यू विल सी the selected column gets shifted towards right and a new column is inserted in its place. Next part है इसका पेज नंबर 111. To insert हेडिंग देनी है. To insert entire rows. किसकी देनी है? To insert entire rows. फिर लिखने टू इंसर्ट एन एंटायर रो, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक प्लेस तक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 113. टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स. टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स इसकी हेडिंग देनी है टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स. फिर यहाँ से स्टार्ट करना है. टू डिलीट अ रो कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 यहाँ तक डिलीटेड. विच वर डिलीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट सेल्स इन अ वर्कशीट. स्टेप्स लिखें सेल्स को इंसर्ट करने की वर्कशीट में. तो आंसर यहाँ से टू इंसर्ट सेल्स, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, 4. फिर आपने नीचे लिखना है शिफ्ट सेल्स राइट. इसकी हेडिंग देनी है, ये वाला नहीं लिखना अंदर. शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन. 5 पॉइंट, फिर 6. क्लिक ओके टू इंसर्ट सेल्स. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 116. क्वेश्चन नंबर 6. राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ. आंसर इसका यहाँ से चेंजिंग द रो हाइट हेडिंग देनी है. ये लिखना है यू कैन ऑल्सो चेंज द रो हाइट इन MS Excel 2010. टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, 4, 5 और 6 पॉइंट. क्लिक द ओके बटन. नेक्स्ट, चेंजिंग कॉलम विड्थ. कॉलम विड्थ को कैसे चेंज करना है? टू चेंज द कॉलम विड्थ, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6. क्लिक द ओके button. Okay, next page number, question number 7. How autofill feature is used in MS Excel. autofill feature को हम कैसे यूज करते हैं MS Excel में? आंसर इसका यहाँ से लिखना है to use autofill feature, follow the given step. First point, second, third, 4, 5 और फिर इसका नेक्स्ट पेज नंबर 120.
ये भी लिखना है. You can also generate a predefined series of dates, weekdays or months. So long answer is complete. Okay, next multiple choice questions. Multiple choice questions क्या है? In this feature, the first two values of data in adjacent cell decide the incremental order for the cells further. This is. किस फीचर में डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट टू वैल्यूज़ अगर आप एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यूज़ का इंक्रीमेंटल ऑर्डर जो है वो डिसाइड करती हैं. किस फीचर में है ये? ऑटोफिल फीचर. नंबर 2, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन सा ऑपरेशन जो है वो उसमें हम ये स्टेप्स करते हैं. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि आपने पहले रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है, फिर पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स, फिर आपने माउस पॉइंटर को पोजीशन करना है लोअर बॉर्डर पे ऑफ द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स. ड्रैग द होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड यू विल सी द पॉइंटर चेंजेस टू अ प्लस साइन. ड्रैग द बॉर्डर टू द टारगेटेड लोकेशन. ये स्टेप्स हम किस ऑपरेशन में करेंगे? मूव सेल कंटेंट्स, कॉपी सेल कंटेंट्स, सेलेक्ट अ रो, नन ऑफ दीज. तो ये हम किस में करते हैं? मूव सेल कंटेंट्स. जब आपने सेल कंटेंट्स को मूव करना है तब आप इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट नाउ कम टू द होमवर्क. होमवर्क ग्रुप एक्टिविटी. होमवर्क है यूजिंग नेट फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर योर स्टेट. नेट को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके आपने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर योर स्टेट्स की. सबसे पहले आपने फॉर अपनी स्टेट की जहाँ पर आप रहते हैं आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है? पॉपुलेशन. आपने पॉपुलेशन को बताना है कि आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उसका लिटरेसी रेट कितना है, उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. ठीक है, ये आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करनी है. कलेक्ट द डाटा फॉर लास्ट 6 ईयर्स. ये हिंट आपको दिया हुआ है कि आपने अपनी स्टेट, अपने कंट्री की लास्ट 6 ईयर की के बारे में, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसका जो लिटरेसी रेट है और उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बारे में आपने डाटा को कलेक्ट करना है. फिर आपने सेकंड क्या करना है? प्रिपेयर अ टेबल इन MS एक्सेल टू प्रेजेंट द डाटा. आपने एक टेबल प्रिपेयर करना है MS एक्सेल में इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए. सेव इट विद अ सूटेबल नेम. फिर आपने इसको सेव करना है एक सूटेबल नेम के साथ. अप्लाई द फीचर विच यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर. फिर आपने उसमें फीचर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप इस चैप्टर में लर्न कर रहे हैं. आपको ये उन्होंने टेबल बनाकर दिखाया हुआ है. ईयर देखिए आपने कौन कौन सी हेडिंग देनी है. ईयर कि 2008 में आपका कंट्री जो है पाकिस्तान, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, लिटरेसी रेट कितना है और एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. इससे सिमिलरली 2009, 10, 11, 12 एंड 13 इस इंफॉर्मेशन को आपने सर्च करना है इंटरनेट से और फिर आपने उसको इंटरनेट से सर्च करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को MS एक्सेल में एक टेबल बना के उसमें ये हेडिंग दे के आपने उसमें डाटा को एंटर करना है और सेव करना है आपने उसको एक सूटेबल नेम से. ओके, नेक्स्ट होमवर्क इन द लैब. ओपन MS एक्सेल 2010. MS एक्सेल 2010 ओपन करें. मेक अ टेबल एज शोन बिलो. आपने एक टेबल बनाना है जो आपको, जैसा आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है. A salesperson needs to keep a record of his daily sale as shown below in the list of items sold. आपने इसमें रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड को आपने इसमें एक सेल पर्सन को डेली जब वो सेल करते हैं तो उसको किस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है वो आपने यहाँ लिखना है. जैसे है आइटम्स, आपने ऐसे एज इट इज़ टेबल बनाना है. उसमें ऐसे लिखना है आइटम्स, आइटम सोल्ड इन सितंबर, आइटम सोल्ड इन अक्टूबर एंड आइटम सोल्ड इन नवंबर. फिर उसमें आपने इसी तरह ये इसको फिलअप करना है.
फिर नीचे ये क्या करना है, इसमें एज इट इज़ टेबल बनाकर फिर क्या करना है, गिव अ सुटेबल रेंज नेम टू दिस टेबल एंड सेव इट आल्सो। अब आपने इस टेबल को, जो पूरा आपका ये टेबल बनेगा, उसको आपने एक रेंज का नेम देना है, सुटेबल। फिर आपने उसको सेव करना है। ओपन द सेव वर्कशीट। अब जब आप इसको सेव कर लेंगे फिर आप इस वर्कशीट को ओपन करेंगे। चेंज द रेंज नेम को आप चेंज करेंगे एंड सेव इट विद द न्यू नेम, और उसको आप फिर किसी और नाम से, न्यू नेम से सेव करेंगे। ओपन द सेव वर्कशीट। आप सेव वर्कशीट ओपन करेंगे, ठीक है। मूव द कंटेंट ऑफ सेल आइटम सोल्ड इन नवंबर एंड पेस्ट इट नेक्स्ट कॉलम। फिर आपने नेक्स्ट टास्क क्या करना है कि जो आपका ये लिखा हुआ है ना कि मूव द कंटेंट ऑफ सेल आइटम जो आपके सोल्ड हुए नवंबर में, उसको आपने मूव करना है नेक्स्ट कॉलम में। ओपन द सेव वर्कशीट। आपने फिर सेव वर्कशीट को ओपन करना है। इंसर्ट अ न्यू कॉलम। उसमें आपने एक नया कॉलम इंसर्ट करना है बिफोर B1 से पहले। ये A1 है, ये B1 है, इससे पहले आपने एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। एंड फिल द डाटा एज आइटम सोल्ड इन अगस्त 25, 26, 27, 30, 18, 10, 7 और 9। फिर आपने उसमें क्या करना है कि आपने ये जो आपने सितंबर से पहले आपने कॉलम जो है वो इंसर्ट करना है, उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने हेडिंग देनी है आइटम सोल्ड इन अगस्त, ये आपने हेडिंग देनी है। और उसके अंदर डाटा आपने ये फिल करना है 25, 26, 27, 30, 18, 10, 7 एंड 19। क्रिएट अ सीरीज ऑफ मंथ ऑफ द ईयर यूजिंग ऑटो फिल फीचर। और फिर आपने क्या करना है, आपने क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, सीरीज ऑफ मंथ्स यानी कि ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उनकी सीरीज, ठीक है। ईयर में मंथ्स की सीरीज को आपने क्रिएट करना है यूजिंग ऑटो फिल फीचर को यूज करके। ओके, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपने ये टेबल क्रिएट करना है MS एक्सेल में एज इट इज़, ऐसे ही आपने उसमें डाटा एंटर करना है। उसके बाद आपने इस पूरे टेबल को रेंज का नेम देना है, फिर उसको सेव करना है, और उसके बाद आपने ये वाले फीचर जो हैं वो इसमें अप्लाई करने हैं। तो चैप्टर नंबर 8 इज़ कंप्लीट।